Hello and welcome back, dear students. Wish you all stay happy, healthy, and safe at home and do your studies regularly and properly. I'm Yojna Parak, and today we are going to continue chapter number 10 International Trade for Standard 11 students from your OCM textbook. So, let us revise first what we have learned in the previous video. First, we saw the meaning of international trade, then, we saw its three types: import, export, and re export. And then we tried to understand the causes of international trade. Let us revise the importance, causes, or reason of international trade. Those were that we get benefit of specialization, expert knowledge, new techniques, new technology, and these benefits can be acquired by developing countries and underdeveloped countries, and in return of that, developed countries can get benefit of their wealth, and they can get famous, so they can create goodwill. And along with that, if we consider the customers and sailors, so customers will get various options and they can select their choice. They can select according to their choice the better product with better quality and at cheaper rate. And the sailors will get the world market. They will get the whole world as their market in international trade. So their products demand will raise, and as they are getting world market, their profit will also raise. So this is the benefit with sellers. Now there are, as I told you, some natural necessities there, which is that nature is not equal at every place. So that is why at some places the resources are in abundance, and at some places the resources are in scarcity. To balance it, international trade is very useful, so that abundance resources can be utilized and their value can be raised, and then where scarcity is there, so those abundant resources can be sent there, can be exported there in other countries. Here we are talking about international trade, so it is beyond your country boundary. So if we send those resources to the needy countries, we will get value of that and their necessity will be fulfilled. Along with that, first thing that it provide the facility of satisfying your needs. Along with that, it stabilize the price fluctuation, because if the demand is raising and supply is not available, so inflation will increase. And if the resources are provided to them, then their demand would be satisfied, the supply they will get, and uh, because of that, the price can be maintained, the price elasticity can be maintained. So this is also one benefit of international trade. And when international trade is done, so as they exchange their resources, including man, material, machines, everything, land, they invest, so they get foreign currency, their political relation build-ups, even with the exchange of fashion culture of one country to another country, such as Bharatnatyam dance, Kuchipudi dance, and belly dance, that is all foreign. So this type of culture is exchanged when you do international trade. It can be in any terms, it can be in goods, services, or money, or in any other terms. So when international trade is done, your culture is promoted even in other countries, and at the same time, one more benefit is that the living standard of people raises. They get a better lifestyle due to developed technology and expert advice, and due to support of
those countries which are somewhat economically better than other countries. And it is also helpful when calamities occur, calamities such as earthquake, cyclone, flood. So when these unexpected events occur and it creates lots of destruction, and the economy of the country breaks down, so at that time, to control the situation, to handle the situation, outer support is needed. So in that also, international trade helps by providing them loan, by providing them resources. So in this way, international trade is beneficial, and at the same time it is necessary also for the management, for the balance of nature, and uh, for the overall development of the whole world. So in this way we understood the importance or need of international trade. Now we are moving towards how this international trade is promoted. So now we are going to see the incentives for export trade. Obviously, if we will import, that means we will have to pay them. But everyone wishes to get something, not to give something. So when we will export, we will get money, or you can say foreign currency. So now, as we have learned to manage yourself and to sustain yourself in this competitive world, you will have to enter in the international trade, and that is also necessary because there are some barriers which are inevitable. So to compete with them or to adjust with them, international trade is required. So in that, we need to import some products or things or services which are required by us, and even we export some products so that balance can be maintained. Because if we will import, then we will have to pay the foreign currency, and to pay the foreign currency we need to acquire that also. So that is why, if we will acquire foreign currency, then only we can give it, otherwise it will create the deficiency. So that is why, more than import, export is promoted, because if export will happen, then we will get foreign currency, and it would be easy for us when we will import, so we can pay the foreign currency to the other countries. So that is why export is more promoted, to get foreign currency. Obviously we all like to get something, not to give something. So that is the motive, to maintain the balance between foreign currency and foreign exchange. Export trade is promoted. Now, in what way export trade is promoted, that we are going to see. So there are different means by which government promote the export trade. Why I used the word government? Because it is the trade between different countries. So that is why government involvement is inevitable. So how the government promote international trade, and especially export trade? So in this, first one is trade agreement. In trade agreement, what happens? गवर्नमेंट, एक कंट्री की गवर्नमेंट दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ करार कर लेती है, अग्रीमेंट कर लेती है, और कुछ प्रायोरिटी सेट कर देती है. इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं, सो आपको एग्जांपल से ही ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा. हमने करार किया है फॉरेन करेंसी से कि हम उन्हें वैक्सीन्स प्रोवाइड करवाएंगे कुछ एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, और उसके बदले में हमें उसकी वैल्यू मिलेगी. उसकी की जैसे अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो राफेल का करार हुआ है जो हमारी कंट्री में आएगी. सो इस तरह से एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, तो चाइना के साथ पाकिस्तान का करार हुआ है कि चाइना पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट और साथ में जो सेना उनको चाहिए सपोर्ट के लिए, दूसरी कंट्री से फाइट करने के लिए, वो प्रोवाइड करेगी. बदले में पाकिस्तान चाइना को रेसिडेंशियल प्लेस देगा, स्पेस देगा अपनी कंट्री में. सो इस तरह से कई
अग्रीमेंट किए जाते हैं, करार किए जाते हैं बिटवीन वन कंट्री टू अनदर कंट्री। सो इससे क्या होता है कि दोनों कंट्री अपनी अपनी नीड्स रिक्वायरमेंट्स जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। एंड जब ट्रेड अग्रीमेंट गवर्नमेंट के थ्रू होता है तो सेलर्स के लिए एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि उनको एक कोटेशन मिल जाता है कि उनको कितना प्रोड्यूस करना है और उतना का उतना उनका सेल होगा, ये श्योर है, और वो भी अदर कंट्रीज़ में जहाँ पर उसकी वैल्यू भी अच्छी मिलेगी। तो ये जब ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो सेलर्स को ये बेनिफिट मिलता है, एक्सपोर्ट में इस तरह से प्रमोशन मिलता है कि ऑलरेडी उनकी इतनी परसेंट और इतनी क्वांटिटी में सेलिंग होनी श्योर हो जाती है और उतना उनका बेनिफिट सिक्योर हो जाता है। सो ट्रेड अग्रीमेंट में क्या होता है कि एक कंट्री की गवर्नमेंट दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट कर लेती है कि वो ये प्रोडक्ट इतनी इतनी क्वांटिटी में इतनी प्राइस पर इस तरह से सेल करेंगे, इस तरह से प्रोवाइड करेंगे एक कंट्री एक दूसरी कंट्री को। दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड एग्रीमेंट इन सिंपल टर्म्स इफ आई से। सो इस तरह से वो प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं अपनी। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इंकरेजमेंट रिवॉर्ड। फाइनेंशियल या इकोनॉमिक इंकरेजमेंट रिवॉर्ड किस तरह से दिए जाते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक्सपोर्टर को वो प्री डिटरमाइंड रेट पर कोई ना कोई रिवॉर्ड जो उनका डायरेक्ट रिवॉर्ड जो डिसाइडेड होता है वो प्रोवाइड करेंगे, या फिर जो टैक्स एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है या तो लेस कर देंगे या फिर टोटली डिडक्ट कर देंगे, या फिर अदर इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल रिवॉर्ड किस तरह से हो सकते हैं कि उनको पार्शली या फुल्ली इनकम टैक्स पर जो एक्सपोर्ट से इनकम आती है उस पर एग्जम्पशन दे दें। एंड अदर दैन दिस encouragement can also be given by providing raw material or electricity facility, communication facility, transportation facility, या उनको कोई equipment चाहिए या फिर लोअर रेट पर उनको कैपिटल चाहिए या प्रोडक्शन का कोई भी मटेरियल चाहिए, एक्सपर्टाइज नॉलेज चाहिए। सो ये सारी चीज़ें उनको लोअर रेट पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस तरह से इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली उनकी मदद की जाती है, या तो डायरेक्टली उनको रिवॉर्ड देकर या फिर उनका टैक्स डिडक्ट करके या फिर उनको जो रिसोर्सेज चाहिए वो चीपर क्वालिटी पर प्रोवाइड करके, ताकि उनकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो और वो अपनी सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट अच्छा अर्न कर सकें। तो जब वो प्रॉफिट अच्छा अर्न करेंगे ओब्वियसली वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो एक्सपोर्ट अगर प्रमोट होगा तो हमारे देश में फॉरेन करेंसी आएगी तो हमें अच्छा लगेगा। ओके, एंड कीप इन माइंड एक्सपोर्ट ओनली उन्हीं प्रोडक्ट का किया जाता है जो यहाँ पर अबंडेंस में है, मतलब यहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट है उतना प्रोवाइड होने के बाद में जो एक्स्ट्रा है प्रोडक्शन अगर एक्स्ट्रा हो रहा है दैट वुड बी एक्सपोर्टेड। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कमी पड़ रही है और हम उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता, ये लीगल नहीं है, वैलिड नहीं है। ओके, नेक्स्ट कलेक्टिव एंड सिस्टमेटिक इकोनॉमिक इंकरेजमेंट। कलेक्टिव और सिस्टमेटिक इकोनॉमिक इंकरेजमेंट किस तरह से किया जाता है कि उनको जैसे मैंने अभी बताया कि रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करवा देंगे। वो किस तरह से, मान लो उनको पोर्ट एरियाज़ पर एक सुटेबल लैंड उनको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहाँ पर उनको जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो चीपर रेट पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, उनको इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी दे दी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे दी, सो लेबर अवेलेबल करवा दिया, या फिर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है ताकि उनके कॉस्ट जो है वो कम से कम पर हो और अच्छी से अच्छी क्वालिटी वो प्रोड्यूस कर सके। सो ये सारे इंकरेजमेंट इसी के लिए दिए जाते हैं। उनको अलाउ कर देना कि वो फैक्ट्रीज़ इस्टेब्लिश कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में और उस एरिया में उनसे टैक्स कम लेना या फिर बिल्कुल ही एग्जम्प्ट कर देना। तो इस तरह से उनके लिए एक स्पेशल जोन बनाया जाता है। ज़्यादातर ये स्पेशल जोन जो होते हैं वो पोर्ट एरियाज़ के पास ही होते हैं, ताकि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब करें तो उनको ईज़िली ये ट्रेड वो कर सके। सो दैट इज़ द स्पेशल सिस्टमेटिक एंड कलेक्टिव इकोनॉमिक इंकरेजमेंट। ये इकोनॉमिक इंकरेजमेंट किस तरह से होता है कि उनके लिए अलग से जोन बना दिए जाते हैं, ट्रेड जोन, फ्री ट्रेड जोन बोलते हैं उनको, या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बोल सकते हैं। तो इसमें
उनको लैंड प्रोवाइड करवा दी जाती है और अदर जो मटेरियल है या जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो प्रोवाइड करवा दी जाती है। एंड उनको अलाउ कर दिया जाता है कि वहाँ पर वो अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एंड साथ ही उनका जो टैक्स है वो भी अलग अलग टैक्स जो पहले लगते थे अभी तो नहीं लगते हैं, जो कस्टम ड्यूटी हो, एक्साइज ड्यूटी हो या इनकम टैक्स हो, ये अलग अलग तरह के जो भी टैक्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनमें या तो उनको एग्जम्पशन मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा कुछ 1% तक, या फिर फुल्ली एग्जम्प्टेड हो सकता है। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज। ओके, चलो हमने यहाँ से तो उनको सारी फैसिलिटीज़ सर्विसेज दे दी कि आप प्रोडक्शन अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन वो जो एक्सपोर्टर है जब वो एक्सपोर्ट करेगा तो उसे बहुत सारे रिस्क फेस करने होंगे। तो वो उस रिस्क को फेस करने के लिए रेडी कैसे होगा? तो उसके लिए कुछ उसको अश्योरिटी चाहिए, जैसे कि उसका पेमेंट उसको टाइम पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है वो तो हर सेकंड चेंज होता है। मतलब जो रुपये की वैल्यू है, मान लो अगर कोई यूएस के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है तो रुपये की वैल्यू जो है वो डॉलर के टर्म्स में हर सेकंड चेंज हो रही है, तो वो फ्लक्चुएशन के टाइम पर उसको लॉस नहीं हो जाए। तो ये सारे जो रिस्क है उससे वो शायद एक्सपोर्ट करने में थोड़ा घबराए। अब हम तो चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, तो इसलिए हम इन सारी चीज़ों में भी उसको सिक्योर कर देते हैं। किस तरह से कि आपको बिलिंग की जो अमाउंट है वो सेम डे पर मिल जाएगी, या फिर जो आपका एक्सचेंज रेट है उसमें फ्लक्चुएशन होगा तो उसमें भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा कि इस रेट पर जिस दिन आपने करार किया है उस टाइम पे जो रेट चल रही है वही रेट पर आपको अमाउंट मिलेगी। सो कुछ इस तरह से उनको श्योरिटी दी जाती है ताकि वो एक्सपोर्ट करने से घबराए नहीं। या फिर जो इम्पोर्टर है वहाँ से गारंटी आ जाती है, जो गारंटियर है वो गारंटी दे देता है कि आपके पैसे डूबेंगे नहीं, वो श्योरली ये इम्पोर्टर आपको पे कर ही देगा, वो नहीं करेगा तो मैं बैठा मैं कर दूँगा। तो इस तरह से उनको अश्योर किया जाता है कि उनका पैसा कहीं डूबेगा नहीं और वो एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे उनको कोई लॉस नहीं होगा। ओके, सो इस टाइप के बेनिफिट्स या अश्योरिटी एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज़ नॉन इकोनॉमिक फैसिलिटी। अभी तक तो हमने सारी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल फैसिलिटी देखी, अब नॉन इकोनॉमिक फैसिलिटी क्या क्या हो सकती है? जैसे कि उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड के बारे में, मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, देन कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड में है या इन सब की उनको नॉलेज देना, और मैन पावर जो है, जो लेबर है, उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देना कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सके जो एक्सपोर्ट वर्दी हो। देन टू प्रमोट अ कंपटीशन अमॉन्ग द एक्सपोर्टर्स एंड गिव अवार्ड टू वन हु एक्सपोर्ट द मोस्ट। जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है उसको अवार्ड दो। इस तरह से उनको नॉन फाइनेंशियल तरीके से इंकरेज किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। उनके बीच में कंपटीशन होगा तो एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा तो हमारा मतलब सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी हमें फॉरेन करेंसी अच्छे से मिल जाएगी। देन इसके अलावा कि उनको एक्सपोर्ट का एक मार्केट क्रिएट करके दिया जाए, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड, मतलब उनके पर्टिकुलर मार्केट से रिलेटेड, एक्सपोर्ट जो भी वो प्रोडक्ट कर रहे हैं उससे उसके मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाए। देन अगर अब ज़्यादातर कंपनीज़ में क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिस्की चीज़ दैट इज़ विद इन द कंपनी स्ट्राइक हो जाए, लॉकआउट हो जाए, या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर हो तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, बिकॉज एक्सपोर्ट के लिए उनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है, उसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर उनको करना है। और जब ये सब बंद हो जाता है तो जो उनका मटेरियल है वो सारा वेस्ट हो जाता है, बना हुआ आधा बना हुआ प्रोडक्ट वो वैसे ही रुक जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट ट्रेड में इलीगल कर दी जाती है कि स्ट्राइक नहीं होगा, लॉकआउट नहीं होगा, वो कंटिन्यू ही रहना चाहिए प्रोडक्शन, ताकि टाइमली वो अपना जो ट्रेड है या जो उनका टारगेट है वो फुलफ़िल कर सकें। सो इस तरह के नॉन इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ दी जाती है कि उनको अवार्ड देना, या इस तरह के जो इशू क्रिएट होते हैं स्ट्राइक या लॉकआउट की वजह से उसको इलीगल जाहिर कर देना, या फिर मैन पावर को ट्रेनिंग देना, या फिर उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सो ये सारी नॉन इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती है एक्सपोर्टर्स को। नाउ नेक्स्ट इज़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये वर्ड मैंने पहले भी यूज़ किया था। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है,
एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, फ्री ट्रेड जोन, फ्री पोर्ट, इंडस्ट्रियल जोन। सो ये सारी चीज़ें स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंक्लूड होती है ना। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, कहाँ से आया है? तो शुरू से ये नहीं था, ये आया था 10 फरवरी 2006 में। मतलब पार्लियामेंट में इसके लिए अप्लाई किया था 2005 में, और फाइनली ये इम्प्लीमेंट हुआ 2006 में। अब इसमें जो एक्सपोर्टर्स है उनको प्रमोट करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो उसी के लिए बनाया जाता है कि एक्सपोर्टर्स को कम से कम कॉस्ट पर उनका प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रेडी हो जाए और वो एक्सपोर्ट वर्दी हो। जितना वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमें फ़ॉरेन करेंसी मिलेगी। तो इस तरह से फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट या फ़ॉरेन करेंसी गेट करने के लिए गवर्नमेंट प्रमोट करती है एक्सपोर्टर्स को। किस तरह से प्रमोट करती है उसके हमने पहले देखे कि ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इनमें उनको जो भी उनको रिसोर्सेज चाहिए वो अवेलेबल करवा दिए जाते हैं, इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा दी जाती है, लैंड अवेलेबल करवा दी जाती है। दैन उसके साथ साथ जो भी टैक्स है वो भी रिड्यूस कर दिए जाते हैं, जैसे कि सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। दैन इनकम टैक्स में भी उनको बेनिफिट मिल जाता है, सेल्स टैक्स हो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो। सो ये सारे टैक्स जो है उसमें उनको या तो लिबरल कर देते हैं, यानी थोड़ा बहुत उनको छूट छाट मिल जाती है, या फिर फुल्ली एग्जम्प्टेड हो जाता है ये जो स्पेशली जोन बनाया जाता है एक्सपोर्ट के लिए उसमें, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो रेज़ हो एंड उसके साथ साथ उनको फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी मिलती रहे। सो इसलिए एक्सपोर्टर्स को अलग अलग तरीके से बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ये सारे बेनिफिट्स जो हमने पहले पढ़े ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जैसे कि उनको टैक्स में रिलीफ प्रोवाइड करना, दैन रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, फैसिलिटीज़ देना, और उसके साथ साथ श्योरिटी देना कि उनका पैसा डूबेगा नहीं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो इस तरह से वो एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करते हैं ना। ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, फ्री ट्रेड जोन, फ्री पोर्ट, इंडस्ट्रियल जोन, ये सब क्या होता है इन डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, शॉर्ट में समझ लेते हैं। फ्री ट्रेड जोन जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हम डिटेल में नेक्स्ट पॉइंट जो है वो उसमें देखेंगे। फ्री ट्रेड जोन यानी यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको जो टैक्स है वो सब बहुत कम या फिर फ्री रहेगा। दैन फ्री पोर्ट जो है, अब पोर्ट को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वेयर हाउस, वहाँ पर होते हैं वेयर हाउस यानी गोडाउन। तो जो आपको सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है तो उसके लिए आपको अगर स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, देन ऐसे गोडाउन्स बनाए जाते हैं जहाँ पर उनके लिए कोई कस्टम ड्यूटी नहीं होती है, वो कस्टम ड्यूटी से फ्री होते हैं। सो इस तरह के पोर्ट्स पर इस तरह के वेयर हाउसेस, गोडाउन्स बनाए जाते हैं ताकि एक्सपोर्टर्स का कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, उनको टैक्स कम पे करना पड़े। तो इस तरह से वो एक्सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होंगे। इंडस्ट्रियल जोन बना दिए जाते हैं जहाँ पे उनको इजीली परमिशन मिल जाती है कि यहाँ पर आप अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हो, उसके लिए आपको जो भी फैसिलिटी चाहिए वो सब प्रोवाइड होगी। मतलब पूरे गांव में नहीं मिले लेकिन आपको तो मिल ही जाएगी। सो इस तरह से इनको स्पेशल एरियाज़ दे दिया जाता है कि यहाँ पर आपको जी भर के जितना प्रोडक्शन करना है आपको फुल छूट है, हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी। प्रोडक्शन करो, एक्सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी लाओ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाओ। ना नेक्स्ट वन इज़ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ये और फॉरेन ट्रेड ये और फ्री ट्रेड जोन जो है वो सिनोनिम्स है, मतलब दोनों में फैसिलिटीज़ लगभग एक जैसी मिलती है। ये कहाँ पर इस्टेब्लिश होते हैं तो ज़्यादातर पोर्टल एरियाज़ पर इस तरह के जोन होते हैं, जैसे कि गुजरात में कांडला, दैन सेंटा क्रूज़ मुंबई में है, फाल्टा, नोएडा, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोसिंड्रा, जो द्वारका और दहेज इन सब के पास में, फिर भरूच, ये सारी जो जगह है जहाँ पर पोर्टल एरियाज़ आते हैं, ज़्यादातर ऐसे प्लेसेस पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन या फ्री ट्रेड जोन होते हैं, जहाँ पर वो अपना एक्सपोर्ट का जो भी प्रोसेसिंग करना है या ट्रेडिंग करना है या प्रोडक्शन करना है वो इजीली कर सकते हैं। उसके लिए उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, मटेरियल चाहिए, मैन पावर चाहिए, उसको ट्रेनिंग करवाना है, या फिर जो लॉज हैं वो भी लिबरल होंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्राइक हो या फिर लॉकआउट हो, ये सब वहाँ पर इलीगल कर दिया जाता है।
और इसके अलावा जो टैक्स है, ड्यूटी है, वो भी लिबरल कर दी जाती है। जैसा कि यहाँ पे नाम ही दिया हुआ है कि वो फ्री ट्रेड जोन है, तो या तो वहाँ पर जो ड्यूटीज़ है या जो टैक्स है वो बहुत ही कम रहेगा या फिर बिल्कुल ही नहीं रहेगा। तो इस तरह के जोन स्पेशली इस्टेब्लिश किए जाते हैं सो दैट वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन करेंसी को या फॉरेन एक्सचेंज को इंकरेज कर सके एक्सपोर्ट के थ्रू, और फॉरेन रिलेशन मेंटेन कर सके दूसरी कंट्रीज़ के साथ। सो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाता है, एंड ये सारे इंसेंटिव्स है जिस तरीके से या जिसके थ्रू वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं कि उन्होंने अग्रीमेंट कर दिया तो ये तो श्योर है कि इतना प्रोडक्ट तो हमारा सेल होगा ही अदर कंट्री में। देन फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंकरेजमेंट के लिए रिवॉर्ड दे दिए उनको कि अब आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स पर भी कम चार्जेस लगेंगे। सो इस तरह की फाइनेंशियल इकोनॉमिक इंकरेजमेंट रिवॉर्ड दिए जाते हैं। देन कलेक्टिव सिस्टमेटिक इकोनॉमिकल इंकरेजमेंट में उनको इस तरह के जोन बना दिए जाते हैं, इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, जो भी मटेरियल चाहिए वो भी कम चीपर कॉस्ट पर इजीली अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। देन फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ और सर्विसेज प्रोवाइड करवा दी जाती है, जैसे कि उनको रॉ मटेरियल चाहिए, मशीनरी चाहिए, मैन पावर को ट्रेनिंग देना है। सो ये सारी चीज़ें। देन नॉन इकोनॉमिक मैन पावर को ट्रेनिंग देना नॉन इकोनॉमिक फैसिलिटी में आता है। देन नॉन इकोनॉमिक फैसिलिटी में जैसे कि स्ट्राइक लॉकआउट को इलीगल डिक्लेयर कर देना, देन ट्रेनिंग देना, देन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मार्केट की कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब आप करते हो तो किस चीज़ में करना चाहिए, कौन सी कंट्री में करना चाहिए। देन उनका जो जो थ्रेट है कि जो एक्सपोर्ट करेंगे वापस उसकी वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी, दैट इज़ कवर्ड इन फाइनेंशियल फैसिलिटी एंड सर्विसेज। सो उसके लिए उनको श्योरिटी दे दी जाती है कि आपके पैसे डूबेंगे नहीं, और जो फ्लक्चुएशन होता है एक्सचेंज रेट में उससे भी आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ उनको दी जाती है, एंड उसके साथ साथ उनके लिए अलग से स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फ्री ट्रेड जोन या फिर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जो भी आप बोल दो, ये उनके लिए बनवाए जाते हैं ताकि वो वहाँ पर इजीली अच्छे से अच्छी क्वालिटी और चीपर रेट के साथ प्रोडक्शन कर सके एंड ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। जितना ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगा, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी आएगी। सो ये सारे बेनिफिट्स लेने के लिए एक्सपोर्टर्स को गवर्नमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है। किस तरह के बेनिफिट? वो फाइनेंशियल हो सकते हैं, उनको श्योरिटी देने के हो सकते हैं, या नॉन फाइनेंशियल हो सकते हैं, उनको लिबरल लॉ अप्लाई कर दिए जाते हैं, उनको इस तरह के स्पेशल जोन बना दिए जाते हैं जहाँ पर उनको जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जैसी भी रिक्वायरमेंट है, वो सारी फुलफ़िल हो जाए और चीपर कॉस्ट पर बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर सके, एंड उसके थ्रू उनका इस कंट्री का जो ग्रोथ है वो पॉसिबल होगा। जब उनके यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी, तो हमारी वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, हमारे रुपये की वैल्यू अदर कंट्रीज़ के रुपये की वैल्यू में इंक्रीज़ होगी इस तरह से। सो ये सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से फॉरेन ट्रेड को, स्पेशली एक्सपोर्ट को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। ये सारे मीन्स हैं जिससे वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं। सो अभी तक तो हमने देख लिया कि फ़ॉरेन ट्रेड की रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, और किस तरह से फ़ॉरेन ट्रेड में स्पेशली एक्सपोर्ट को इंसेंटिव्स देकर प्रमोट किया जाता है, सो दैट आर कंट्री कैन गेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन करेंसी, सो दैट आर country's रिलेशन with other country can be maintained, can be improved, and also the value of our country's currency can be the value can be increased. सो ये सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से एक्सपोर्ट को स्पेशली प्रमोट किया जाता है ना। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, चलो प्रोडक्शन तो करना ही है, प्रोडक्शन करने के बाद तुरंत थोड़ी ऐसे ही भेज देंगे, उसका कोई स्टेप होता है, प्रोसीजर होता है जो उनको फॉलो करना होता है। सो दैट वी आर गोइंग टू सी, दैट मीन्स import and export procedure we are going to see in our next session. Here this session completes. Now I hope that after this explanation this topic is clear to you, and might be this explanation will be helpful for you. So now we will meet in our next session with a new topic of this chapter.
Here we are ending this lecture. Now, I just wish you all stay happy, keep on learning, and thanks for being with me. See you.